عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن جادو کیس کی سماعت۔ پاکستانی وکیل خاور قریشی نے بھارتی موقف کی دھجیاں اڑا دیں۔ بھارت کلبھوشن کو اپنا شہری نہیں مانتا تو کونسلر رسائی پر اصرار کیوں؟ کلبھوشن ایران سے اغوا ہوا تو ایرانی حکام سے رابطہ کیوں نہ کیا؟ کلبھوشن مبارک حسین کیوں بنا؟ عالمی عدالت انصاف میں پاکستانی وکیل کے دلائل، بھارتی وکیل کی ہوائیاں اڑ گئیں، سر پکڑ لیا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہا کمانڈر کلبھوشن نے دہشت گردی کی معاونت کی۔ پاک چین اقتصادی راہداری کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ کلبھوشن کیس میں پاکستانی اٹارنی جنرل انور منصور کا بیان، ایڈ ہاک جج تصدق جیلانی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے؟ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر۔ الزامات کا کھیل کھیلنے والے بھارت کو وزیر اعظم پاکستان کا دو ٹوک جواب۔ بھارت نے حملہ کیا تو سوچیں گے نہیں، جواب دیں گے، یہ نیا پاکستان ہے۔ وزیر اعظم نے پلوامہ واقعے کی تحقیقات کی بھی پیشکش کر دی، کہا ثبوت دیں ہم ایکشن لیں گے۔ کشمیر معاملے پر ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ بھارتی حکومت بلا وجہ کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں، اقوام متحدہ کی فوری مداخلت کی ضروری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خط لکھا۔ بھارت میں تعینات ہائی کمشنر سہیل محمود سے ملاقات، حکومت کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس طلب کرنے پر غور۔ پاکستان دشمنی میں بھارت اندھا، راجستھان سے پاکستانیوں کو نکل جانے کی دھمکی، 48 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ انتہا پسند ہندوؤں کی انتہا، ثانیہ مرزا پر بھڑک اٹھے، پاکستانی بہو قبول نہیں کے نعرے لگا دیے۔ ٹینس اسٹار کو ایمبیسڈر آف تلنگانہ کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ بھارتی تاجروں نے بھی پاکستان سے تجارتی آرڈر منسوخ کرنا شروع کر دیے۔ واہگہ سرحد پر ٹرکوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سعودیہ سے پاکستانی قیدیوں کی رہائی، شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔ سفارت اور قونصل خانوں کو فہرست مرتب کرنے کی ہدایت دے دی گئی۔ زیادہ مقدمات کفالہ نظام اور معاہدوں کے خلاف ورزی سے متعلق ہیں۔ قیدیوں کے اہل خانہ خوشی سے نہال۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سعودیہ کا ولی سداد آیا ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی اس اپیل کو قبول کیا۔ بہت خوش تھا قرآن پاک جا کے بہت دعا مانگے، اللہ سونا دیتے، اللہ سونا۔ نواز شریف جناح اسپتال میں زیر علاج، آج اینجیوگرافی کا امکان۔ میڈیکل بورڈ نے سفارشات محکمہ داخلہ کو بھجوا دی۔ نواز شریف اینجیوگرافی کی حالت میں نہیں، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا رد عمل۔ مریم نواز کہتی ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ کارکنوں کی اسپتال میں داخلے کی کوشش، ایڈمن بلاک کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اپوزیشن لیڈر پر ایک ماہ کے لیے بیرون ملک جانے پر پابندی۔ وزارت داخلہ نے شہباز شریف کا نام قومی شناختی فہرست میں ڈال دیا۔ نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے بھی سمری تیار، منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجی جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالصمد کی گرفتاری سے متعلق نیب ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ ڈاکٹر عبدالصمد کے خلاف شواہد، گرفتاری کی وجوہات اور دیگر دستاویزات پیش۔ چیئرمین نیب کی تحقیقات میرٹ اور شواہد کی بنیاد پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ نیب کو روزانہ کی بنیاد پر تحقیقات کرنے کا حکم، کہا عبدالصمد کا موقف ذاتی حیثیت میں سنوں گا۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف ایکشن، گلشن اقبال میں قائم غیر قانونی دکانیں اور فٹ پاتھ مسمار۔ ناظم آباد اور گارڈن کے علاقوں سے بھی تجاوزات کا صفایا۔ کلورکوٹ میں زہریلے سوپ سے اموات، 2 خواتین جاں بحق، 2 کی حالت غیر۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ سماج سے محروم بچوں کو کارآمد بنانے کا مشن، خصوصی بچوں کی نگہداشت کے لیے بنوں میں خصوصی اقدام۔ 150 بچوں کو کرائے کی عمارت میں پڑھایا جانے لگا۔ بھارتی فضائیہ کے اناڑی پائلٹس، کرناٹک میں 2 طیارے فضا میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ حادثہ ریہرسل کے دوران پیش آیا۔ کراچی میں بادل برسنے کو بے قرار،
महकमा मौसमियात ने आज रात तक बारिश की पेशगोई कर दी। बल्दियाती महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, वजीर बल्दियात ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। अस्सलामुअलैकुम, शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण जाधव केस की समाअत के दौरान पाकिस्तानी वकील ने भरपूर दलाल दिए, जिससे भारतीय वकील होश व हवास खो बैठा। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने भारतीय मौक़िफ़ की धज्जियां उड़ा दी। कहा कि अगर भारत कुलभूषण को अपना शहरी नहीं मानता तो कौंसलर रसाई पर इसरार क्यों है? कुलभूषण अगर ईरान से अगवा हुआ था तो फिर ईरानी हुकाम से राब्ता क्यों नहीं किया गया? भारत बताए कि कुलभूषण मुबारक हुसैन क्यों बना? खावर कुरैशी ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन में जासूस को कौंसलर तक रसाई देने का कोई जिक्र नहीं। पाकिस्तानी वकील के दलाल पर भारतीय वकील की हवाइयां उड़ गई, सर पकड़ लिया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने बयान दिया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस रहा। कमांडर कुलभूषण ने दहशतगर्दों की मुआवनत की। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। आलमी अदालती इंसाफ में कुलभूषण केस की समाअत कल भी जारी रहेगी। भारतीय वकील अपने दलाइल आज जारी रखेगा। आज की समाअत के दौरान भारतीय वकील की बॉडी लैंग्वेज और पाकिस्तानी वकील के दलाइल पर बात करते हैं। पेरिस में मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस से। मोहम्मद यूनुस बताएगा, आज की समाअत में पाकिस्तान ने अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। जी बिल्कुल, आज जो है में जो आलमी अदालत इंसाफ में जो भारतीय जासूस कुलभूषण का जो केस है, आज उसका दूसरा रोज था। कल भारतीय वकील ने अपने दलाइल दी थी और आज पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने बहुत भरपूर तरीके से पाकिस्तान के केस को उन्होंने पेश किया था। पाकिस्तान के वकील ने दलाइल देते हुए भारतीय दलाइल को गुमराह कुन करार दिया और कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों की सरपरस्ती करता आ रहा है और कुलभूषण केस भी इसी चीज की एक कड़ी है। कमांडर जाधव ने दहशतगर्दों की मौनत फराम की। पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर कुलभूषण के अहलखाना से मुलाकात कराई। भारत ने कभी जवाब नहीं दिया कि जाली पासपोर्ट पर कुलभूषण ने पाकिस्तान में क्या कर रहा था और इसी जाली पासपोर्ट पर 17 बार कैसे इंडिया का सफर किया। कुलभूषण एक आम कैदी नहीं, जबकि कुलभूषण ने दहशतगर्दी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का एतराफ़ कर चुके हैं। पाकिस्तान के वकील ने का मजीद कहना था कि बैनुल-अक़वामी कानून और वियना कन्वेंशन के मुताबिक खुफिया एजेंट या दहशतगर्द को किसी ऐसे मुल्क को इसके किसी ऐसे इक़्तिदार तक रसाई देना जिसे इसी रियासत ने दहशतगर्दी और जासूसी के लिए भेजा हो, बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक नहीं। पाकिस्तान की तरफ से इस केस की पैरवी खावर कुरैशी कर रहे हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर भी हमरा हैं। आज कुलभूषण की तहज़ीबकारी से मुतालिक शवाहिद और वीडियो मोहम्मद यूनुस, भारत की जानिब से वकील कौन है और भारतीय वकील की बॉडी लैंग्वेज कैसी रही? जी, आज अगर आप वीडियो में देख सकते हैं तो भारतीय वकील जो थे वो जो कल भी जो थे उन्होंने वही जो रटा पुटा उन्होंने जो दो चीज़ों पे बात की थी कि पाकिस्तान ने इनको रसाई नहीं दी और फौजी अदालतों पर उन्होंने नुक्ताचीनी की और उन्होंने कोई ऐसी नई चीज़ नहीं की जो जिस तरह पिछले उन्होंने वो करते आए हैं। लेकिन पाकिस्तानी वकील ने आज बड़े भरपूर तरीके से उनका जवाब दिया और भारतीय वकील आज इंतहाई मायूस कौन दिखाई दे रहे थे वहाँ पे। इसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने बल्कि गैर मुल्की और यूरोपीय मीडिया ने भी महसूस किया। तो जब पाकिस्तानी वकील दलाइल दे रहे थे उस वक्त भारतीय वकील की क्या सूरत हाल थी? जिस टाइम पाकिस्तानी वकील दलाइल दे रहे थे उसमें आप वीडियो में भी बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय वकील ने सर पकड़ लिया था, बार बार नर्वस हो रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो इंतहाई डिस्टर्ब हैं और काफ़ी परेशानी की आलम में थे। बल्कि जिस टाइम वो आज जो दूसरे दिन की जो समाअत जब ख़त्म हुई तो वो सर झुका के बिल्कुल जो है ना जिस तरीके से वो आ रहे थे वो इंतहाई मायूसी की आलम में थे। और उसकी जो मोहम्मद यूसुफ ये बताइएगा कंक्लूड कब होंगे दलाइल और दलाइल पर दलाइल जो है ये सिलसिला कंक्लूड कब होगा ताकि कुछ कंक्लूजन जो है वो भी सामने आए? जी आपको बताते चलें कि ये 4 रोज़ा समाअत होगी। कल जो पहला दिन था जो गुजर चुका है उसमें भारतीय वकील ने जो अपने दलाल दी, आज पाकिस्तानी वकील ने इंतहाई भरपूर तरीके से पाकिस्तान का दिफा किया। कल दोबारा भारतीय वकील जो पाकिस्तान ने अपने सबूत के साथ, आज वीडियो सबूत के साथ और डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ
अदालत को जो पेश की है उस पर वो कल भारतीय वकील करेगा। और आखिरी जो 21 तारीख को है इसको जो है पाकिस्तानी जो अपना कंक्लूड करके। लेकिन मोहम्मद यूनुस, आलमी अदालत इंसाफ में ज़ाहिर केस चल रहा है ना, तो इसका तरीक़ाकार क्या होता है, जरा नाज़रीन के लिए बताइएगा। जी, ये अभी 4 दिन, इसकी जो 2 दिन पाकिस्तानी वकील इसमें पेश होगा और अपने मौक़िफ़ पेश करेगा, जबकि 2 दिन भारतीय वकील अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसके बाद केस को फैसला महफूज कर लिया जाएगा। 3 से 4 महीने तक गर्मियों के जो मौसम में ये कह रहे हैं कि इसमें इसका फैसला आने का मुतवक्का है। रहीम, इस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने। बहुत शुक्रिया सर में ज्वाइन करने का। आपने आज यकीनन कार्रवाई जो है वो देखी होगी। पाकिस्तानी जो वकील हैं खबर कुरैशी, वो बहुत दबंग तरीके से जो है वो इंडियन जो वकील है उसको साइड लाइन कर रहे हैं, और वो इंडियन वकील जो है वो अपना मौक़िफ़ उस तरह मुदल्लल पेश नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर है कि ये इसके ऊपर पूरी दुनिया इस वक्त फोकस कर रही है। आपकी क्या रीडिंग है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अहम मुकदमा है और पहले से चल रहा है, और ज़ाहिर है इंडिया ने भी अपने टॉप के जो वकील हैं और जो उनके सरकारी हुकाम हैं उनको यहाँ पर बुलाया है इस केस में। पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल भी हैं और हमारे वकील भी हैं खावर साहब। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है इंडिया के जो वकील थे हारिश साल्वे, उन्होंने जो दलाइल दिए, ये कहा जा रहा है कि वो पुराने दलाइल हैं, उसमें कोई नई बात नहीं हुई। वो इस बात का जवाब नहीं दे सके कि कुलभूषण यादव 17 बार इस पासपोर्ट के ऊपर सफर कर चुके हैं जो कि हुसैन मलिक पटेल के नाम से है। यानी उन्होंने क्यों ये नाम इस्तेमाल किया, ये पासपोर्ट बनवाया? जाहिर है वो जासूस हैं और उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में मुकदमा तो जाहिर है 4 दिन के लिए था और अभी दलाइल मजीद भी होंगे, लेकिन फिलहाल तो सूरत हाल पाकिस्तान के हक में अच्छी जा रही है। तो रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि कुलभूषण अगर ईरान से गिरफ्तार हुआ था तो ईरानी हुकाम से राब्ता क्यों नहीं किया गया? हाँ देखें ना, ये भी तो एक बात है कि ये तो वहाँ पे किसी और नाम से कोई और काम कर रहा था। असल में इसका काम तो ये था, ये तो बलूचिस्तान से पकड़ा गया है और इसने कई बार ये यहाँ पे आया है और ये अफगानिस्तान भी गया है, तो इसके मकासद तो कुछ और था। ये तो कारोबार नहीं कर रहा था चाबहार में, ईरान में। तो अब ये है कि ईरानी हुकाम को भी चाहिए कि वो इसका सुराग लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी जो हैं बड़े नाजुक मोड़ पे हैं। वहाँ पे जो हालिया हमला हुआ है ईरान में, उसके बाद ईरानी हुकाम का पाकिस्तान के बारे में रवैया सख्त होता जा रहा है। यूसुफजई साहब, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी फैसला होगा, ये ममालिक जो है उसको तस्लीम करने के किस हद तक पाबंद होते हैं, ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। और दोम ये कि जो पासपोर्ट के हवाले से बात की जा रही थी, फॉरेंसिक जो उसको चेक किया गया, तो उसमें बाकायदा बरतानवी एजेंसी जो है इसको कंफर्म कर रही है कि ये इंडिया का, ये इंडियन पासपोर्ट है और ये असली पासपोर्ट है। उसके ऊपर जो है वो कॉमेंट ये दिया गया कि ये जब ये बेकार की बात है, इस तरह के कॉमेंट जो है वो दिए गए। तो आपसे जानना चाहेंगे किस हद तक जो है वो दुनिया जो है वो पाबंद होती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फैसले उनको तस्लीम करें? देखें, दोनों मुल्क जो हैं वो बरज़ा और रग़बत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं, और जब वो गए हैं अपने दलाइल दे रहे हैं तो जाहिर है वो इस फैसले को मानेंगे। ये 15 रुकनी जो जजों का पैनल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने फैसला करना है। और देखें, अच्छी बात ये हुई कि जो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, वो भी एडहॉक जज थे, यानी वो रेगुलर जज नहीं थे, एडहॉक थे, और वो अचानक बीमार हो गए, तो वो भी अभी इस फैसले में शामिल नहीं होंगे। वरना इंडिया वाले कहते कि ये तो पाकिस्तानी है, तो वो भी उनके पास बहाना नहीं होगा। और अब ये है कि मेरे ख्याल में जब गैर जानिबदार और गैर मुल्की इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां और सफारतकार और जज वो फैसले करेंगे तो उसकी बड़ी एक इखलाकी अहमियत होगी, और फिर ये फैसला जो है इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान की पोजीशन कितनी मजबूत लग रही है इस केस में रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब? देखिए, पिछली बार तो शायद हम उसको अपने केस को इस बेहतर तौर पर पेश नहीं कर सके जिस तरह इस बार कर रहे हैं। इस बार पाकिस्तान की तैयारी जो है वो बड़ी भरपूर है और इसलिए तवक्कुआत भी ज्यादा हैं।
अब ये जो इंडिया ने एक पॉइंट उठाया है कि कुलभूषण यादव को सफारती डिप्लोमेटिक एक्सेस नहीं दिया गया, उनको जो इंडियन के सफारतकार हैं उन तक रसाई नहीं मिल सकी, ये उनका एक बड़ा आर्गूमेंट है। और ये कह रहे हैं कि ये फौजी अदालत ने एक सिविलियन को सजाए मौत दी। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि ये सिविलियन नहीं है बल्कि ये इंडियन नेवी का ऑफिसर है, सर्विंग ऑफिसर है, हाजिर सर्विस है। तो ये तो बिल्कुल ये अब फैसला करना होगा इन 15 जजों को कि जो इंडिया का दावा है कि ये सिविलियन है और जो पाकिस्तान का दावा है कि ये फौजी है, ये नेवी का ऑफिसर है और ये खास तौर पर जासूसी के लिए आया था अंडर कवर। इसका कवर ये था कि ये कारोबार कर रहा है चाबहार में। अब ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि इंडियन जो है वो आके चाबहार में कारोबार कर रहे हैं। चाबहार का जो बंदरगाह है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप भी किया है ईरान के ताउन से। तो मेरे ख्याल में ये इसमें एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान को बाईपास किया जाए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, और फिर चाबहार को इस्तेमाल भी किया जाए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। ठीक, यूसुफ ज़ई साहब ये फरमाइएगा कि क्या ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके फैसलों को कहीं चैलेंज भी किया जा सकता है? देखें, मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी बात निकलती है तो जाहिर है लोग चैलेंज करेंगे और शायद ये फैसला जो है ये ऐसा हतमी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, सर मैं इस पस मंजर में कह रहा हूं कि जब पिछली गुज़श्ता समाअत थी तो उस वक्त ये बात सामने आई थी और इंडिया में बाकायदा इसके ऊपर लिखा गया कि ये जो कुलभूषण जाधव का केस है ICJ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया लेकर गया है, कल को कश्मीर का केस पाकिस्तान जो है वहां पर लेकर जा सकता है ICJ में। तो उस पर वहां पर यह लिखा गया कि जनाब वो तो यूनाइटेड नेशंस में केस है, एक हाईएस्ट फोरम के ऊपर है। तो इस हवाले से मैं जानना चाह रहा था। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे पाकिस्तान को कामयाबी मिलती है तो पाकिस्तान की मोटिवेशन होगी कि कश्मीर का भी जो केस है वो भी लेकर जाएं, क्योंकि ये देखें वहाँ पे UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं और उसके ऊपर इंडिया अमल नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो तैयार है क्योंकि इंडिया को खौफ है कि कश्मीरी लोग जो है वो इंडिया के खिलाफ फैसला देंगे अगर उनको रायशुमारी का हक दिया गया। पाकिस्तान को कोई खौफ नहीं है, उनको पता है कि कश्मीरी जो है पाकिस्तान के हक में फैसला देंगे। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा जो है एक फैसला होने जा रहा है और इसमें अगर पाकिस्तान को कामयाबी मिलती है तो पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी मजबूत हो जाएगी। कुलभूषण यादव जो है वो पाकिस्तान की तहवील में है, सजाए मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ने उसको अभी तक सजाए मौत नहीं दी। पाकिस्तान मुंतज़िर है कि ये केस का फैसला हो जाए और इंडिया वाले बिल आखिर मान जाए। इंडियन मीडिया में आ चुका है कि ये इंडियन है और ये नेवी का ऑफिसर है, इस तरह की बातें इंडिया में भी आ चुकी हैं मीडिया में। तो इंडिया कैसे यूसुफ ज़ई साहब, एक तरफ ये केस चल रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जारहियत भी जारी है, आपके इल्म में होगा। तो इस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का एक अहम बयान आना कि अगर भारत ने हमला किया तो सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे, किस तरह देख रहा है? जी बिल्कुल, देखें ये एक बड़े नाजुक मौके पर ये कुलभूषण यादव का मुकदमा ICJ में आ गया और फिर वो इससे पहले कश्मीर में एक बड़ा हमला हो गया। इतना बड़ा नुकसान कभी इंडियन आर्मी का नहीं हुआ। ये दोनों चीजें इकट्ठी आ गई हैं। तो ये धमकियां जो इंडिया की तरफ से मिल रही है वो अपने आप को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले गए हैं। यानी अगर वो पीछे अभी हटते हैं इस तरह की धमकियां देकर तो खुद उनकी जो है एक किस्म की शर्मिंदगी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है इंडिया को जो उनके वजीर आज़म है, जो उनके वजीर ख़ारजा है, उनको बतौर एक स्टेट्समैन के सोचना चाहिए। आप पहले सबूत पेश करें फिर कहें। और ये तो जिसने हमला किया आदिल डार, वो तो कश्मीरी है, वो तो पाकिस्तान नहीं आया, वो तो वहीं पर रेडिकलाइज हुआ है, उसके ऊपर ज़ाहिर जुल्म हुआ, उसके हम वतनों के ऊपर जुल्म हुआ, तो इसलिए उसने बंदूक उठाई, उसने हमला कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की पोजीशन कश्मीर के हवाले से बहुत कमज़ोर है, कोई उसके पास जवाब नहीं है और मजीद भी उसकी पोजीशन कमज़ोर होगी और पोजीशन कमज़ोर होगी। ठीक है, हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब, उनसे भी बात करते हैं। तारिक साहब, कुलभूषण केस में पाकिस्तान ने आज ऐसे जानदार दलाइल दिए कि भारतीय वकील ने अपना सर पकड़ लिया। तो पोजीशन मजबूत लग रही है आपको पाकिस्तान की इस केस में? हाँ देखिए, जो इस वक्त तक जो दलाइल चल रहे हैं और जो गुज़श्ता चंद सालों में कुलभूषण के हवाले से हक़ाइक़ मंज़र आम पर आए हैं
اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ بھارتی وکیل جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا ویلڈ جواز نہیں ہے جس کو وہ کورٹ آف لا میں پیش کر سکے اور کورٹ آف لا میں پیش کر کے اس کو کنونس کریں. باقی عالمی سطح پر فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہوتی ہے، اس پر ہم اس وقت بحث نہیں کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو دو چیزیں اس کیس میں بڑی واضح ہیں. ایک تو کلبھوشن جو ہے وہ اقراری اور اعترافی مجرم ہے. وہ جب گرفتار ہوا تھا پاکستان میں بلوچستان میں دہشت گردی کے الزام میں، تو اس کے بعد سے اس کی وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں اس نے اعتراف کیا تھا. وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی اور ساری دنیا نے دیکھی. دوسری، اس پاکستان کی تحویل کے دوران اس نے جتنے اعترافات کیے، جو نیٹ ورک اس نے تشتہ زبان کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے، بین الاقوامی برادری کو پتہ ہے. اور پاکستان اس حوالے سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بار بار جو ہے پاکستان میں جو مختلف ممالک کے سفیر ہیں، خاص طور پر جو یورپین ممالک کے سفیر ہیں اور دیگر امپورٹنٹ ممالک ہیں، ان کو بھی بریف کر چکا ہے. پھر ہمارے سفارت خانوں نے بھی دنیا میں خطوط لکھے تھے، ان سب کو بتایا تھا کہ وہ کون سے حالات ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن اور کون سا پس منظر ہے جس میں کلبھوشن گرفتار ہوا تھا. اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ طارق صاحب ایک سوال میں اپنے لیے آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ اعترافی ویڈیو آ چکا ہے تو پھر بھارت کیا کس طرح جسٹیفائی کرے گا اس کو؟ دیکھو جسٹیفائی تو ظاہر ہے جس طرح سے آج تک وہ کشمیر پر اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی نہیں کر سکا، جس طرح آج سے وہ جو بھارت ہے اس کے اندر اقلیتوں کے خلاف اس کی پالیسیاں ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکا، جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں سلوک ہوتا ہے اس کو اس نے کبھی آج تک جسٹیفائی نہیں کیا. یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں کہ اس نے ان کو جسٹیفائی کیا. کیا میں سیاست کی بات نہیں کرتا، میں کھیل کی بات کر لیتا ہوں. ایک ضمنی بات کے طور پر پاکستان کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ سائن کیے کرکٹ سیریز کھیلنے کے، اور وہ ایگریمنٹ سائن کر کے مووی سائن کر کے مکر گیا. تو بھارت جو ہے وہ دنیا کا ایک ان ملکوں میں شامل ہے جس نے آج تک کبھی کسی انٹرنیشنل اوبلیگیشن کی پرواہ نہیں کی، کبھی تک کسی انٹرنیشنل اوبلیگیشن کو فالو نہیں کیا، کبھی اس نے مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کیا. جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، مذاکرات کی میز پر پاکستان بیٹھتا ہے اور وہ پاکستان دوسری صرف جو ہے اس کی دوسری جو سائڈ ہے ٹیبل کی وہ خالی ہوتی ہے. تو یا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ ٹیبل پر بیٹھتا ہے اور کسی ہیلے بہانے سے اٹھ جاتا ہے. کبھی وہ پٹھان کوٹ کے بہانے سے اٹھتا ہے، کبھی وہ بمبے کے واقعات کے حوالے سے اٹھتا ہے، کبھی وہ سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے اٹھ جاتا ہے، اور کبھی پھر وہ اڑی کو جواز بناتا ہے. اور پھر یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ چند سالوں بعد یہ سارے واقعات ایسے ہیں جن میں ایک ایک کر کے سوائے شاید کسی ایک آدھ واقعے کے جہاں یہ بات بھارت کی اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ اڑی کا واقعہ ہو، سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہو یا پٹھان کوٹ کا واقعہ، اس کے اپنے اندر کے ایلیمنٹ وہ ثابت ہوتا ہے نکلتے. جی محمد یونس بھارت تو کبھی کسی ایگریمنٹ کو مانا نہیں آج تک. ایک ہٹ درمی کا رویہ ہے جس کو بین پر اپناتا ہے اور اسی رویے کی بنیاد پر وہ اپنی سفارتکاری کا کھیل کھیلتا ہے. جی محمد یونس، آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ پرائمری جوڈیشل برانچ ہے یونائٹڈ نیشنز کی، تو فرمائیے گا کتنا ظاہر ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے اس کی کتنی ریٹ ہوگی، کتنا فیصلہ اہم ترین ہوگا، اور کیا بھارت اس کو خراب کرنے کے، اس کو سبوٹاژ کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں